الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیدہ نجم زہرا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 23 ستمبر کو اس ملک میں ایک اور اندوہناک واقعہ رونما ہوا۔ ایک انتہائی قابل پڑھی لکھی اور صرف 3 ماہ پرانی نئی نویلی دلہن جس نے پسند کی شادی کی تھی اور یہ پسند کی شادی اس کا جرم بن گیا، اس کے اپنے سگے شوہر نے اس کو بے دردی سے قتل کر دیا اور عدالتی احکامات کے بعد شاہ نواز امیر کے والد سینئر جرنلسٹ ایاز امیر صاحب کو بھی عدالتی حکم کے مطابق گرفتار کیا گیا اور 1 روزہ ریمانڈ پہ ان کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ آج اسلام آباد کی عدالت میں کیا ہوا، جو کچھ بھی آج کمرہ عدالت میں ہوا، اس سے آپ کو آگاہی دینے کے لیے اپڈیٹ کر رہی ہوں۔ کچھ پوائنٹس ہیں جو میں لکھ لیتی ہوں ہمیشہ تاکہ آپ تک صحیح اطلاعات دوں، کوئی بھی مس گائیڈنس نہ ہو۔ اسلام آباد ڈسٹرکٹ سیشن عدالت سارا انعام قتل کیس ایاز امیر 1 روزہ ریمانڈ کے بعد ایاز امیر کو آج عدالت میں پیش کیا گیا۔ ایاز امیر کو سینئر سول جج محمد عامر عزیز کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ تفتیشی افسر کا کہنا تھا کہ واردات کے بعد شاہ نواز امیر نے اپنے والد ایاز میر صاحب سے رابطہ کیا۔ آئیو نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ مقتولہ کے والد کینیڈا سے اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ ایاز امیر صاحب کی جانب سے ایڈوکیٹ بشارت اللہ، نثار اصغر، ملک زعفران نے وکالت نامے جمع کرائے۔ وکیل بشارت کا کہنا تھا کہ مقدمہ 23 ستمبر کو 3 گھنٹے بعد درج ہوا۔ ایاز امیر صاحب کے وکیل صفائی بشارت اللہ کا کہنا یہ بھی تھا کہ ایاز امیر کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں۔ پولیس نے وارنٹ گرفتاری حاصل کر کے ایاز امیر کو گرفتار کیا۔ ایاز امیر کے خلاف پولیس کے پاس کیا ثبوت ہے جو انہوں نے ایک میرے معزز کلائنٹ کو گرفتار کیا؟ ایڈوکیٹ بشارت اللہ نے اپنے کلائنٹ کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ کینیڈا سے آنے والا کوئی بھی شخص کسی کے بھی خلاف مقدمہ کر سکتا ہے۔ کینیڈا سے آنے والے شخص کے پاس میرے کلائنٹ کے خلاف کیا ثبوت ہیں؟ میرے کلائنٹ ایاز امیر صاحب اپنے گھر چکوال میں تھے جس وقت یہ حادثہ رونما ہوا اور انہوں نے ہی پولیس کو اطلاع دی۔ وکیل بشارت اللہ کا مزید کہنا تھا کہ 35 سال سے ایاز امیر کا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جب میرے موکل کا 35 سال سے اس گھر سے کوئی تعلق نہیں تھا اور جائے وقوع پہ بھی میرا موکل موجود نہیں تھا، دفعہ مثل پر کوئی ثبوت نہیں، یعنی پولیس کے پاس اور جنہوں نے یہ مقدمے میں ان کو نامزد کیا ہے ایاز امیر صاحب کو، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ اس قتل میں شامل ہیں، تو میرے موکل کو باعزت طور پہ جو ہے اس کیس سے ڈسچارج کیا جائے۔ مزید وکیل بشارت اللہ نے عدالت کو جو دلائل دیے اس میں کہنا تھا کہ پولیس عدالت کو ابھی تک نہیں بتا سکی کس ثبوت کے تحت ایاز امیر کو گرفتار کیا گیا۔ ہم تو تفتیش سے نہیں بھاگ رہے، وارنٹ لے کر گرفتار کیا گیا۔ مطلب وکیل جو ایاز امیر صاحب کے وکیل ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے تو تفتیش سے ہم نہیں بھاگے اور پولیس نے ان کو گرفتار کیا اور یہ گرفتار ہو گئے۔
जज को मुखातिब करते हुए बशारतुल्लाह का कहना था, कोई ऐसा एक्ट बता दें जिससे साबित हो कि अयाज अमीर मुलव्वस है इस कत्ल में। ट्रायल की हैं, रिमांड स्टेज पर देखा जाएगा कि क्या सबूत आए हैं। ये मौक़िफ़ था सरकारी वकील का। मक़तूला के वालिद कनाडा से आए हैं, तदफीन भी करनी है। सरकारी वकील का जज साहब को आगाह करना था। सरकारी वकील ने हमने दलाइल देते हुए कहा कि अभी तक अयाज अमीर का व्हाट्सएप पर रब्ता हुआ वो सबूत है जिसकी बिना पर इनको गिरफ्तार किया गया। न सिर्फ ये कि वो सबूत है जिसकी वजह से हमने गिरफ़्तार किया, सरकारी वकील का कहना था कि अगर हमें ख़ुद भी लगे कि ये बेगुनाह हैं, साबित हो जाए और हम अपनी तहकीकात में ये मालूम कर लें कि ये बेगुनाह हैं, तो हम भी इनको डिस्चार्ज करने की सलाह देंगे। सरकारी वकील ने इस तरह कहा। आया दोनों जानिब के आर्गूमेंट सुनने के बाद जज साहब ने सवाल किया कि अयाज अमीर को किसने नामज़द किया और वो किधर है, जिस पर सरकारी वकील ने कहा कि मक़तूला के चचा जो कि पाकिस्तान में ही रहते हैं, रिहाइश पज़ीर हैं, उन्होंने अयाज अमीर को इस FIR में नामज़द किया और उन्होंने कहा कि उनकी भतीजी के कत्ल में जो है अयाज अमीर बराबर के शरीक हैं। इस पर जज ने सरकारी वकील से सवाल किया कि आपके पास कोई सबूत हैं? तो सरकारी वकील ने जवाब दिया कि मक़तूला के कत्ल के फ़ौरन बाद मुलज़िम ने अपने वालिद से रब्ता किया, न बल्कि खून भरी जो लाश थी उस बच्ची की, उसकी तस्वीर खींच के अपने वालिद को भेजी। सरकारी वकील ने कहा कि मक़तूला के वालिदैन के पास सारे सबूत हैं, जिस पर दरमियान में बोलते हुए अयाज मीर के वकील ने कहा कि पुलिस अगर एक बटन दबाए तो CDR निकल आती है। ये कौन कह रहा है? बशारतुल्लाह, जो कि अयाज मीर के वकील हैं। उनका कहना है कि पुलिस एक बटन दबाए तो CDR निकल आएगी, और अगर वालिद का बेटे से रब्ता वक़ुआ के बाद हुआ तो इसमें कहाँ साबित होता है कि वो इस कत्ल में बराबर के शरीक हैं। का बेटे से रब्ता हो जाए तो क्या दफ़ा 109 लग जाती है? क्वेश्चन मार्क बशारतुल्लाह की तरफ से। उनका मज़ीद कहना था कि फिर तो पुलिस जिससे रब्ता हो उनको मुलज़िम बना देंगे, कि पुलिस ख़ुद कह रही है कि बेगुनाह हुए तो डिस्चार्ज कर देंगे, तो इतने दिन गिरफ़्तार रख कर जग हसाई हुई, इसका ज़िम्मेदार कौन है? बशारतुल्लाह ने सरकारी वकील और पुलिस को मशवरा देते हुए कहा कि पहले आपको चाहिए था कि आप सबूत इकट्ठा करते और फिर मेरे मुवक्किल को गिरफ़्तार करते। कहा कि मक़तूला के वालिदैन का मेरे मुवक्किल के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं है। अदालत ने पुलिस की जानिब से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फ़ैसला महफूज कर लिया। बशारतुल्लाह ने पुलिस को मुखातिब करते हुए कहा कि जब सबूत आ जाए तो फिर वारंट देकर आ जाओ और गिरफ़्तार कर लेना। सरकारी वकील कह रहे हैं कि हमने सबूत बनाने होते तो हम बना देते, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जिस पर बशारतुल्लाह ने कहा कि आपकी ईमानदारी ये है कि मैं 4 दिन से मेरा मुवक्किल हथकड़ी में खड़ा है। बशारतुल्लाह ने तंज़िया अंदाज में कहा कि पुलिस बंदा गिरफ़्तार करके सबूत ढूंढ रही है। बशारतुल्लाह ने जज साहब से इस्तदा की कि अयाज मीर को मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाए। इसके जवाब में सरकारी वकील ने कहा कि आप जो कह रहे हैं कि एक बटन दबाओ तो CDR निकल आती है, तो बराए मेहरबानी अपनी इस्लाह कीजिए
व्हाट्सएप कॉल की CDR नहीं निकलती और मोबाइल को फ्रांजिक के लिए भेज दिया गया है सरकारी वकील। बहरहाल ये दोनों तरफ के जो है आर्गूमेंट चले, सरकारी वकील के और अयाज मीर साहब के। और फिर सीनियर सिविल जज आमिर अजीज़ ने फ़ैसला सुना दिया। जज साहब का कहना यही था कि सफ़े मिसल पर कोई सबूत नहीं, मतलब सबूत ना होने की वजह से पुलिस जो है तफ्तीशी अफसर अयाज मीर के ख़िलाफ़ कोई सबूत पेश नहीं कर सके, इसलिए अयाज अमीर को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया। सारा इनाम कत्ल केस में अयाज मीर को शहजाद टाउन पुलिस ने रिहा कर दिया। अयाज अमीर को अनाते जुर्म की दिफा 109 में गिरफ़्तार किया गया था। सीनियर सिविल जज आमिर अजीज़ ने अयाज अमीर को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का हुक्म दे दिया। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है हमारे मुल्क की। मैं समझती हूँ कि जिस तरह के वाक़यात हो रहे हैं बहुत सारे सवालात को जन्म दे रहे हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं अपनी बच्चियों की ज़िंदगियों को लेके। हम आपसे हमेशा कहते हैं कि जब तक सज़ा और जज़ा का निज़ाम कायम नहीं होगा, माशरे में इस तरह की ख़बरें आती रहेंगी, लोग इस तरह के जराइम करते रहेंगे। नाज़रीन, मेरी जो रिसोर्सेज़ हैं, मेरे जो इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट साथी हैं जो मुझे इस्लामाबाद से आगाही फ़राहम करते हैं, उनका यही कहना है कि इस केस में कुछ नहीं होगा। अयाज मीर साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब और मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के बहुत ही करीबी लोगों में से हैं, दोस्तों में से हैं और मीडिया पे भी अपना एक बहुत बड़ा असर व रसूख रखते हैं। तो इस केस को खामोशी से दबा दिया जाएगा, तारीख़ें होंगी, लिंगर ऑन किया जाएगा केस को, जिस तरह आप मुस्तकिल देख रहे हैं। नूर मुक़द्दम का भी केस आपके सामने और कराची की मगवी कमसिन बच्ची का केस भी आपके सामने है। हज़ारों केसेस ऐसे हैं। तो इस मुल्क में जो है सिर्फ़ और सिर्फ जिसकी लाठी उसकी भैंस चलता है। किसी मज़लूम को मुश्किल ही लगता है कि इंसाफ मिले। अयाज मीर साहब बहुत असर व रसूख के मालिक हैं, बहुत ताल्लुक़दार हैं, हर शोबे में उनके बहुत जान पहचान वाले लोग बैठे हैं। तो आवाम में मायूसी है। आवाम में मायूसी इसलिए भी है कि मैं आपको बताऊं कि जब किसी का कोई जवान मरता है ना, तो वो माँ बाप अगर जवान भी होते हैं तो उस अपने जवान लगते जिगर की शहादत के इंतकाल के बाद टूट जाते हैं और वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं। और जो हमारा अदालती निज़ाम है, सिस्टम है कि जहाँ रोटी चोर को तो सज़ा होती है और जो मुल्क को बेच के खा जाए, जो मुल्क को लूट के खा जाए और जो कत्ल करें, गारतगरी करें, वो आराम से दंदनाते हुए फिरें। बहुत सारी मिसालें आपके सामने हैं। कराची के एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बंदा जिसके नाम से आप वाकिफ़ हैं, जो लोगों की गर्दनें काट के फ़ुटबॉल खेला करता था, जिसने ख़ुद 100 उर्दू स्पीकिंग नौजवानों को कत्ल करने का अदालत में बयान दिया था, ख़ुद कबूला था। GIT पे बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स के जो हैं साइन हुए हैं कि उसने ख़ुद तस्लीम किया कि मेरे इलाके में जब कोई उर्दू स्पीकिंग आता था तो मैं उसका शनाख्ती कार्ड देख के उसे ज़िबा कर देता था, और 100 से ज़ायद। और आज वो तमाम तर मुक़दमात में बाइज़्ज़त बरी है। आपने देखा होगा कि एक जगह से जो है शराब की बोतल बरामद हुई और फिर उसको जो है शहद साबित कर दिया गया।
میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ مایوس نہ ہو، لیکن جو ہمارے حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے تو بس اللہ رحم کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنی ہوش سیدہ نجم زہرا کو اجازت دیجیے۔ اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ دعا ہے پروردگار سے کہ پاکستان میں بھی عدل و انصاف قائم ہو۔ اللہ نگہبان۔